I am Vimal Kirti, PGT Mathematics, Shemford Futuristic School, Sultanpur. On behalf of our entire Shemford family, I welcome you all to this new series of online video lectures in which we will be covering the entire course of mathematics for classes 9th to 12th. It's a great honor to be a part of such an initiative by our visionary leader, our Chairman Sir, for our students whose academics have been deeply struck in the difficult times of COVID-19. Let's start our first lecture for class 9th. We will be starting off with the first chapter, and that is number system. In the number system, we will be talking about the numbers, the various numbers that we have already studied in our previous classes, like even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers, natural numbers, whole numbers, integers, etc. and etc. All the various types of numbers that we have already studied up to class 8. If we see the broader classification of all those numbers, we say that basically all the numbers are classified into two parts. The first is the family of real numbers, and the second is the family of imaginary numbers. It means the numbers that actually do not exist in the world of mathematics, but we do imagine those numbers when some special situations arise. So that is not in the syllabus of class 9th. The class 9th syllabus concerns mainly with the real numbers itself. So what are real numbers? रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो नंबर लाइन यानी कि रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किए जाते हैं. इसीलिए उस नंबर लाइन को, जो सीधी वाली लाइन होती है, बीच में ज़ीरो होता है, लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 और कंटिन्यू करता है, राइट साइड में 1, 2, 3 इस तरह से कंटिन्यू करता है, इसी नंबर लाइन को हम लोग रियल नंबर लाइन बोलते हैं. यही रीज़न है क्योंकि उस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स प्लॉट किए जा सकते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं. So if we see the broader classification of real numbers itself, so basically this is further classified into two parts. The first family is called rational numbers and the second family is called irrational numbers. Rational number के बारे में हम पहले से ही जानते हैं एक चीज़, वो ये कि वो सारे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में होते हैं, p और q दोनों इंटीजर होता है और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता है. ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स. ये जो z यहाँ पे मार्क किया हुआ है ये इंटीजर की फैमिली को डिनोट करता है. तो वो सारे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए. इफ वी सी अ फ्यू एग्जांपल्स हियर, सो आई हैव टेकन अ फ्यू एग्जांपल लाइक 1/4. ऑब्वियसली दोनों के दोनों इंटीजर हैं तो रैशनल नंबर है क्योंकि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है. नेक्स्ट इज -1/2. अगेन दोनों के दोनों इंटीजर हैं, सेम चीज़ें प्रॉपर्टीज सब पे लगेंगी. -1/-5, 1/-8, 0/1, 3. 3 रैशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर दिखता नहीं है लेकिन होता है. 3 को हम लिख सकते हैं 3/1. सो वी हैव p, वी हैव q and q is not equal to 0 as well as p and q both are integers here. All these are rational numbers. Now if we talk about the decimal expansion of these rational numbers, then let's convert all these rational numbers p/q forms to the decimal form. So 1/4 can be written as 0.25. If we divide this 1/4, we will get 0.25. If we divide 1/2, we will get 0.5. एंड माइनस साइन चूंकि यहाँ पे है तो इस पर भी लग जाएगा, नेगेटिव नंबर है. ये 1/-8 है तो जाहिर सी बात है माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रखते. जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो माइनस ओवरऑल पूरे नंबर पे होता है. तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इट विल बी -0.125, लीविंग अदर्स लाइक 1/3 एंड -1/6. इन नंबर्स का भी डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो हम देखते हैं 1 को जब 3 से डिवाइड किया गया तो 0.3333 डॉट इट कंटिन्यूज टू द एंड एंड नेवर कम्स. -1/6 तो माइनस का तो माइनस रह गया यहाँ पे, दिस वन माइनस मिसिंग ओवर हियर, माइनस हो गया. और
1/6 को हम 0.16666 रिपीट्स ओवर एंड ओवर, ठीक है। और जो डिजिट रिपीट करता है उस पे हम बार लगा के लिख सकते हैं। जैसे इसको हमने लिख दिया है 0.3 बार और इसको हमने लिख दिया है -0.16 बार। बार सिर्फ उसी डिजिट पे लगता है जो रिपीट कर रहा होता है। जो रिपीट नहीं कर रहा होता है, जैसे 1 यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है तो हम 1 पे बार नहीं लगाए हैं, बार हमने सिर्फ 6 पे लगाया हुआ है। अच्छा, जब हम इस p/q फॉर्म को एनालाइज करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के तौर पे, तो हमने देखा कि एक्चुअली डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे भी रैशनल नंबर के दो चेहरे हैं। एक वो चेहरा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाता है, जैसे ये 1/4 का खत्म हो गया, -1/2 का खत्म हो गया, 1/-8 का ये खत्म हो गया। और दूसरा वो चेहरा जो खत्म नहीं होता है, वो रिपीट कर रहा होता है, जैसे ये वाला 1/3, ये 0.3333 जा रहा है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो ये रिपीट करने वाला है, ये भी रिपीट करने वाला है। तो बेसिकली the decimal expansion of any rational number can be of two kinds, whether it will terminate or it will repeat. So यही नाम भी दिया गया है, एक को बोलते हैं terminating decimal expansion और दूसरे को बोलते हैं non terminating repeating. रिपीटिंग की जगह पे कई किताबों में एक और शब्द यूज किया जाता है recurring, दोनों का मतलब सेम ही है। तो non terminating repeating, शॉर्ट में इसको बोलते हैं NTR। तो ये रहा, जाहिर सी बात है ये टर्मिनेटिंग है, टी से डिनोट कर दिया, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये नॉन NTR है, ये NTR है, ये टर्मिनेटिंग है। कुछ एग्जांपल्स बाकी हैं, जैसे ये क्या है आगे पता चलेगा, देखते हैं। ये 0/1 क्या है, 0/1 क्या होगा, 0 ही होगा, तो ऑब्वियसली ये टर्मिनेटिंग है। 3 तो खत्म हो गया ये नंबर, तो ये टर्मिनेटिंग है। -1/-5 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये माइनस कट जाएगा, 1/5 मिलेगा हमको 0.2 और ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन जो ड्रॉ किया था कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी रैशनल नंबर कैन टेक टू फेसेस। द फर्स्ट फेस विल बी ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड द सेकेंड फेस विल बी ऑफ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो जब भी ये चेहरा मुझे पहचानने की नौबत आएगी, एक ऐसे p/q के फॉर्म में नंबर दिया हुआ होगा और मुझे पहचानना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं हर बार ये डिवाइड करूँगा, डेसिमल फॉर्म में एक्सपैंड करूँगा, या फिर हमारे पास कोई दूसरा तरीका भी है, रेडीमेड तरीका, शॉर्टकट तरीका। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो चलिए आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर, यानी कि कौन सा p/q फॉर्म डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट करेगा या डेसिमल फॉर्म में रिपीट करने वाला है। तो जाहिर सी बात है पहला स्टेप जो होगा हमारे आइडेंटिफिकेशन में वो ये होगा कि हम उस p/q फॉर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जिनको नहीं पता है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन सबको कैंसिल आउट कर देना, यानी कि काट पीट के बराबर कर देना, सिंपल सा है। पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सेकेंड हिस्सा होगा वी विल चेक द डिनोमिनेटर, वी विल चेक द डिनोमिनेटर ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी प्रजाति नहीं आती है, कोई तीसरा प्राइम फैक्टर नहीं आता है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। अगर सिर्फ 2 आते हैं, सिर्फ 5 आता है या 2 और 5 का मिक्स करके आता है तो ये टर्मिनेट करेगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरी प्रजाति आ गई तो ये टर्मिनेट नहीं करने वाला है, ये NTR हो जाएगा, रिपीट करेगा। हम कुछ एग्जांपल्स अभी देखेंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए, इस फॉर्मेट का होना चाहिए, 2m and 5n। ऑब्वियसली m and n could be anything. Now see, let's taking the example 12/20। तो हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 4 से दोनों कट रहे हैं, हमने 4 से इसको काट दिया 3 बार में, 4 से इसको काट दिया 5 बार में, ये बच गया 3/5 यानी कि 3/5। नाउ 3/5 में वी विल बी ओनली चेकिंग द डिनोमिनेटर इटसेल्फ। वी सी 5 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, सो 5 इज 5^1। कोई तीसरी प्रजाति नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये जो डेसिमल एक्सपेंशन इस नंबर का होने वाला है वो कैसा होने वाला है, ये टर्मिनेट करेगा।
क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरी प्रजाति अवेलेबल नहीं है। Now this 51 upon 1700, हमने देखा कि 17 एक कॉमन फैक्टर है, तो 17 से इसको 100 बार में काट दिया और 17 से ये 3 बार में कट गया, तो दिस बिकम्स 3 upon 100। नाउ डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो जाहिर से बात है 100 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 5, सो 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर। ये 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरी प्रजाति अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या करने वाला है, ये टर्मिनेट कर जाएगा। अगेन 18 upon 810, हमने देखा 9 से कट रहा है, तो 9 से ये 2 बार में कट गया और 9 से ये 90 टाइम्स में कट गया। फिर देख रहे हैं 2 और 90 ये भी कट रहे हैं, तो 2 से ये 1 बार में, 2 से ये 45 बार में, तो इट बिकम्स 1/45। So 1/45, now again we will be checking the denominator itself. So denominator is 45, and if we do the prime factorization of 45, we will get 3 into 3 into 5. So it becomes 3 square into 5. अब इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या देख रहा हूँ, ये 5 तो है जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 2 और 5 के अलावा तीसरी प्रजाति आ रही है 3, इससे मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है। और जाहिर सी बात है कोई भी तीसरी प्रजाति आ जाएगी तो मुझे कौन सा आंसर देना है, ये कभी टर्मिनेट करने वाला है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा NTR, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड्स हियर। Moving on to the next segment of this chapter. इस वाले सेगमेंट में हम लोग ट्राई करेंगे कि P/Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म को। कुछ पुरानी बातें करेंगे, साथ में कुछ नई बातें करेंगे। पुरानी बातें वही वाली जो हम सब भूल गए हैं। तो चलिए एक छोटी सी कहानी लेते हैं। जैसे कभी आता था हमारे सामने 0.4 और ज़रूरत पड़ती थी इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो बड़ा आसान था हमारे लिए, हम 4/10 कर देते थे। अगर 0.24 बार आता है, 24 आता है, तो ये भी बड़ा आसान था। हम 2 डिजिट देखते थे यहाँ पे पॉइंट के बाद और 2 शून्य लगा देते थे, तो हमारा काम हो जाता था। लेकिन अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे पास जो सवाल आने वाला है वो कुछ इस तरह का है। 0.4 हो सकता है क्वेश्चन में, लेकिन 0.4 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लगा हुआ आएगा, 0.4 बार। अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे P/Q फॉर्म में, वो हम लोगों को देखना है। सो लेट्स सी इसमें करते क्या है स्टेप बाय स्टेप। 0.4 बार का मतलब क्या है, 0.4444 चलता जाएगा। मान लो कि ये नंबर क्या है, x है। लेट मान लिया कि नंबर क्या है, x है। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 10x। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उस केस में ये पॉइंट आगे की ओर जंप कर जाएगा और ये हो जाएगा 4.444। एक चीज़ आप देखोगे कि ये वाला राइट वाला हिस्सा कभी कम नहीं होने वाला है। जब समुद्र में से एक आध बूंद निकाल लिया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इट विल अगेन बी द सेम। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं सबट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। इन दोनों को अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूँ तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। x में से 10x जाएगा तो ये माइनस 9x बचेगा, और यहाँ से अगर हटाओगे तो एक चीज़ दिखेगी कि ये डेसिमल के राइट हैंड साइड वाली चीज़ जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और 0 में से 4 जाएगा तो -4 होगा। ये माइनस और ये माइनस कट गया और x की वैल्यू आपको मिल गई बड़ी आसानी से 4/9। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक रामबाण इलाज है इसका, शॉर्टकट फॉर एवरीथिंग। देयर इज ऑलवेज अ शॉर्टकट फॉर एवरीथिंग। तो चलिए उस तरीके से करके देखते हैं हम लोग आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। क्वेश्चन देखना है और आंसर देना है। सो लेट्स टेक अ फ्यू क्वेश्चंस लाइक 0.4।
itself एक आंसर तो निकाल चुके हैं. नाउ टेक 0.24 and put a bar over here. Third question is 0.126, put a bar over here. Fourth 1.6 bar over here. Enough? I think 4 questions are enough for this. करना क्या है वो समझेंगे. आप जैसे अगर बार नहीं होता तो क्या करते थे, 4/10 कर देते थे. तो 10 की जगह इस बार आपको 9 पुट करना है सिर्फ. तो भाई क्या होगा, 4 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे और क्या लगा देंगे, 9 लगा देंगे. हमारा डायरेक्ट क्या हो गया, आंसर हो गया. अगेन यहाँ पे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि कुछ डिजिट्स पे बार लगे हुए हैं और कुछ पे बार नहीं लगे हुए हैं. तो उसके लिए करना क्या है, पूरा नंबर लिखो, उनको माइनस कर दो जिस पे बार नहीं लगा हुआ है. तो किस पे बार नहीं लगा हुआ है, 2 पे बार नहीं लगा हुआ है. ठीक है, डिवाइड का साइन लगाएंगे. जिस पे बार लगा हुआ था उसके लिए 9 और जिस पे बार नहीं लगा हुआ था उसके लिए 0. तो ये कितना हो गया, इट बिकम्स 22/90, जिसको आप आराम से काट पीट के बराबर कर सकते हो, 11/45. डन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब तो खेल खत्म, कोई भी सवाल हो कर देंगे. फिर से वही, कुछ पे बार है कुछ पे बार नहीं है. तो हम पूरा नंबर लिख लेंगे, उसको माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, यानी कि 12 को. जिस पे बार लगा हुआ था उसके लिए 9, यानी कि इसके लिए, और जिन पे बार नहीं लगा हुआ था उनके लिए 0 डाल दो. सो इट बिकम्स 114/900. और अगेन काटना पीटना तो हमें बड़े अच्छे से आता है. ये कितना हो गया, 450. अगेन ये कटेगा, ये कट जाएगा 1 and 9 एंड इट बिकम्स 150. अब ये नहीं कटने वाला है क्योंकि 19 खुद ही क्या है, प्राइम नंबर है. काम खत्म. इसके लिए कर लेते हैं. तो ये भी एक स्पेशल केस बोल सकते हो, कोई स्पेशल नहीं है वैसे. इसमें करते क्या है कि पॉइंट के डेसिमल के लेफ्ट में जो लिखा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं कर रहा ना. इसको क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 0.6 बार, और ये क्वेश्चन वापस वैसे ही रिड्यूस हो गया. नाउ इट बिकम्स 1 + 6 अपॉन, इसका तो करना ही जानते हैं, 6/9. अब आप क्या करोगे, जिसका कोई नहीं उसका 1, एलसीएम लोगे 9 आएगा, ये 9 + 6 हो जाएगा और इट विल बिकम 15/9. बाकी आप काटना पिटना जानते ही हो, 5/3. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर फर्स्ट लेक्चर वुड बी, सपोज किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि 2.02 बार, इस तरह से बार सिर्फ 2 पे है, मुझे कन्वर्ट करना है. तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 2 + 0.02 बार. ये हो जाएगा 2 + पूरा नंबर लिखेंगे, उसको माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं लगा हुआ है. किस पे बार नहीं लगा हुआ है, 0 पे. तो 0 माइनस करने से तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो रहने दो. इसके लिए 9 और इस 0 के लिए 0. तो ये आगे क्या ट्रांसलेट होगा, ये होगा 2 + ये काट दो यहीं से, 1/45, 1/45. एलसीएम आपको पता है 45 आने वाला है. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम 90, इट विल बिकम 1, सो इट बिकम्स 91/45. डन. We will meet in our next lecture and we will be covering the remaining part of this chapter. We will talk about the representation of irrational numbers as well as rational numbers on the number line. We will also talk about the rationalization of a few irrational numbers. Till then, I am signing off.